Good morning student, this is Anil Kumar Singh, your computer teacher again with a new point which is related to your operating system which is left in the last video lecture. Here I am going to introduce the segment which is left of operating system. In the last lecture we have discussed about the feature of operating system and application. Now I am going to tell you about the types of operating system. Types of operating system. Okay, there are various types of operating system, which is the example of basic two types of operating system. That are, first one is CUI, and second one is GUI. In CUI, you can say this is your command user interface. And second one is GUI, it is called graphical user interface. Okay, these two types of operating system, first one is GUI, command user interface, graphical user interface. We are talking about the CUI. Only example of the CUI is DOS, MS-DOS. It is called Microsoft Disk Operating System, and it is single user operating system where a black window is available and you can do with the operating system with a single user and single interface. Okay, so here I am going to discuss which is related to your graphical user interface, where you can use the multiple users and multiple things. So I am going to tell you about the examples of the GUI which is related to your real time operating system which you are using. Okay, तो हम लोग अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो अभी तक हम लोग जो टाइप्स पढ़ रहे थे या हम लोगों ने अभी तक जितना वर्क किया है वो सारे के सारे GUI टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं. GUI. ओके, फर्स्ट वन है सिंगल यूजर, सेकेंड वन इज मल्टी यूजर, ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, next one is multi-threading. Next one is real-time operating system. And last but not the least, distributed operating system. Okay, these are the operating system which is basically used by the person in graphical user interface. What is the difference between CUI and GUI? If we are talking about the command user interface, you are only using the single input device which is your keyboard. Here in the command user interface, you have to give the commands, then command will give you the result. But here you can use mostly a mouse. You can click drag and drop, all the things are available in the graphical user interface. तो यहाँ पे one by one हम बात करते हैं. First one is single user operating system. If we are talking about the single user operating system, a user can use your operating system only once. Okay, एक single user इसी को यूज करता है. यही आपका CUI based operating system होते हैं, या कह सकते हैं DOS इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है. ठीक है, जहां पे एक यूजर एक सिस्टम को यूज कर सकता है, दूसरा यूजर उस सिस्टम को यूज नहीं कर सकता. ओके, सेकंड वन वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी यूजर. यहां से ही शुरुआत होती है आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, जहां पे ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं. कमांड पे तो आपको सिर्फ एक ब्लैक विंडो दिखाई देती है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑल द ग्राफिक्स आर अवेलेबल हियर. ओके, ग्राफिक्स मींस योर बैकग्राउंड, your themes, you can click on the files and folders.
तो ये फैसिलिटी आपको CUI में नहीं मिलती है। क्लियर? तो मल्टी यूजर की हम लोग बात करें तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा बहुत सारे यूजर को एक साथ एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि हाँ बहुत सारे यूजर एक साथ इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टी प्रोग्रामिंग वेयर इन अ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द मल्टी प्रोग्राम्स, मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स एक साथ रन किए जाते हैं एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, लाइक अगर हम लोग बात करें कि आप लोग अपने विंडोज पे एक साथ कई टास्क परफॉर्म करा सकते हैं, आप उस पर सॉन्ग भी सुन सकते हैं, ओके, आप लोग उस पर वीडियोस भी देख सकते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं उस पर वर्ड या एक्सेल पे काम भी कर सकते हैं। तो दीज आर द मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे एक से ज्यादा प्रोग्राम आप एक साथ यूज कर सकते हैं। उन ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जहां पे अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग मींस अगर हम लोग एक कंप्लीट टास्क की बात करें तो कंप्लीट टास्क मल्टीपल पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अगर एक मैं सिंगल प्रोग्राम, चलो एक मैं सॉफ्टवेयर की बात कर लेता हूं, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर के कई पार्ट होते हैं जहां पे आपकी प्रोग्रामिंग भी होती है, ठीक है, टेस्टिंग भी होती है, और फिर उसके अलावा इसके एप्लीकेशन साइकिल्स में जब ऐप तैयार की जाती है तो उसका इंटरफेस भी होता है। ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज गोइंग थ्रू अ सिंगल सॉफ्टवेयर मेकिंग, एक सॉफ्टवेयर को बनाने। तो दीज आर द थ्रेड्स ऑफ अ प्रोग्राम। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब सिर्फ यही होता है कि अलग अलग पार्ट को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना, या अलग अलग पार्ट को एक ही सिस्टम पे ऑपरेट कर देना। दिस इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई देते हैं, तुरंत के तुरंत आपको जवाब दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस इफ यू आर गोइंग टू द ATM मशीन, तो ATM मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाते हैं दैट इज योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वेयर यू कैन गिव द कमांड और आपको तुरंत के तुरंत रिजल्ट मिलता रहता है। कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ह्यूमन एफर्ट को लूज करके वहां पे मशीन को रखा गया है, तो वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होते हैं। आप पेन डालते हैं, उसके बाद अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो मनी आपको तुरंत के तुरंत मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही सिस्टम के कई पार्ट अलग अलग जगह होते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, कोई और किसी और जगह अवेलेबल है, और कोई और किसी और जगह अवेलेबल है। हम सभी के सभी एक ही सिंगल विंडो पे जब कलेक्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। या अलग अलग जगह से हम अलग अलग सिस्टम को ऑपरेट कर पाए, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली जो आप सभी को पता रहने चाहिए और जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इन द लास्ट क्लास हम कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग दो चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पर अभी तक हम लोगों ने कंपोनेंट के बारे में बात नहीं की। वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमें समझ में आया था कि क्या क्या फंक्शन करता है। उसके बाद हमने टाइप्स की बात कर ली। हियर आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system. Okay. If we are talking about the component of operating system, basically there are two components of operating system. First one is shell, and second one is kernel. Okay, shell and kernel. Here I am going to design, वैसे तो बहुत अच्छी आ रही है, बट आई एम ट्राइंग। If we are talking about the operating system, there are three layers of available on it. First one, second one, and the third. Okay, these three layers are available to relate your operating system. Here, first layer related to your cell. Okay. And the last layer, it is related to your kernel. If we are talking about this, तो यहाँ पे आप लोग की यूज होती है नेटवर्किंग पार्ट, यहाँ पे एप्लीकेशंस आ जाती हैं, यहाँ पे इनपुट आउटपुट आ
जाते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पे फंक्शंस आ जाते हैं। ओके, तो दीज आर द लेयर्स जहाँ पे शेल और कर्नल के बीच में वो पार्ट आता है जहाँ पे नेटवर्किंग, एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट या फिर फंक्शंस, ये सारी चीजें वर्क करती है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं सबसे पहले सेल से। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल, ऑल द एप्लीकेशन जो कि हमें इंटरफेस कराती है किसी न किसी टास्क को कंप्लीट कराने के लिए, वो सारी की सारी एप्लीकेशन यहाँ पे काम करती है सेल पे। एक तरीके से आपका प्राइमरी इंटरफेस है जहां पे स्टार्टिंग बेसिस पे सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज कॉल्ड योर सेल। वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्नल। तो कर्नल का जो मेन टास्क होता है ये एक ना कोर पार्ट, इट इज द कोर पार्ट ऑफ द सिस्टम। Why it is the core part? All the internal operations which is related to your operating system is done by kernel. अब internal operations की अगर बात की जाए तो internal operations में बहुत सारी चीजें होती हैं। internal operation में आपके इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट मींस आप किसी डिवाइस का यूज कैसे कर रहे हैं, उस डिवाइस के ड्राइवर्स इस सिस्टम में पड़े हुए हैं या नहीं, उस डिवाइस के ड्राइवर्स आपको ऐड ऑन करने हैं, उस डिवाइस के ड्राइवर्स का यूज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपके हार्डवेयर से रिलेटेड है या नहीं है। ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू योर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। नेक्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, it is also the part of kernel. Memory management means if you have the 4 GB RAM, but if you want to run a program which is more than 5 or 6 GB, or you can say कि आपको PUBG खेलना है पर आपका जो मोबाइल फोन है वो 2 GB को भी 2 GB RAM के साथ है, तो there is a problem कि मेमोरी को किस प्रकार किस तरीके से एलोकेट करना है to the users या to the mobile phone या to your computer system. Because if the memory management is not possible, your phone or your laptop will be hang. कहीं ना कहीं वो हैंग हो जाता है। आपके रियल टाइम एग्जांपल से अगर बात की जाए तो अगर आपकी कैपेसिटी एक तरीके से 10 लेसन्स को लर्न करने की है और आपको अचानक 10 लेसन्स के साथ 15 या 20 लेसन्स दे दिए जाए, देन योर माइंड विल बी हैंग। क्लियर? तो दिस इज योर कर्नल एंड कोर। कर्नल में आपका नेक्स्ट जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, मेमोरी मैनेजमेंट है, next one is process management. Process management. If we are talking about the process management, there are so many processes are going to complete in RAM. Okay, all the process we will send randomly to the RAM, but always a process can be done one by one. एक बार में एक ही प्रोसेस कंप्लीट होता है। That's why किस प्रोसेस को प्रायोरिटी पे रखना है, किस प्रोसेस को बैक प्रायोरिटी पे रखना है, किस प्रोसेस की वजह से मेरे को डेडलॉक कंडीशन के फेस करनी पड़ सकती है, उसको ब्रेक करना है, उसे छोड़ देना है, या प्रोसेस कितने टाइमिंग में कंप्लीट होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रोसेस मैनेजमेंट मींस और मान लीजिए आपने एक साथ 4 प्रोसेस को रन होने को दिया हुआ है, एक साथ आपने 4 प्रोसेस भेजी है जिसमें फर्स्ट प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस छोटी छोटी है, इट मींस वो 10 KB की है और ये 15 KB की है। ओके, बाकी आपकी जो सेकंड प्रोसेस की वो 10 MB की है एंड जो फोर्थ प्रोसेस है वो आपकी 5 MB की है। Then if we are talking about the process management, first thing it should be done, after that it should be done, then it should be done, and at last 10 MB process should be done. Because अगर मैं सबसे पहले इस प्रोसेस को लगा दूंगा तो बाकी जो ये प्रोसेसेस हैं जो छोटी छोटी हैं जो बहुत फास्ट रन हो सकती हैं, फिनिश हो सकती हैं, सिस्टम को बेमतलब में इसकी जो वैल्यूएशन है उसका मेमोरी ऑक्यूपाई करके बैठती हैं, तो उसको रिलीज कराने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको प्रायोरिटी बेसिस पर रखूंगा। क्लियर? दैट्स व्हाई प्रोसेस मैनेजमेंट ऑलवेज यूजफुल फॉर द सिस्टम, क्योंकि प्रोसेस मैनेजमेंट की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारी जो मेमोरी है वो फ्री हो पाती है। Next one, if we are talking about the device management. Device management. Okay.
By default, we are using two devices in our computer system. First one is keyboard and second one mouse. These are the peripheral devices which is used by the computer system by default. बाकी जो devices हैं, चाहे वो आपका प्रिंटर हो या स्कैनर हो, ठीक है, वो चाहे प्रिंटर हो या स्कैनर हो या कोई और डिवाइस लाइक स्पीकर और प्रोजेक्टर. When you are using these devices from the outside of the computer, तो हमेशा आपको इनके ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है. अगर इनके ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल नहीं है तो कर्नल इसे कभी भी परमिशन नहीं देगा कि इस डिवाइस के थ्रू आप कोई भी आउटपुट या कोई भी इनपुट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कर पाए. क्लियर? भाई स्कैनर है, एक इनपुट डिवाइस है, स्कैन करके इमेजेस को अंदर भेजता है. प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कहीं ना कहीं प्रिंट आउट लेता है. तो अगर इनके ड्राइवर्स ही अवेलेबल नहीं है, जो कहीं ना कहीं सिस्टम पहचाने ही नहीं कि ये किस तरीके की डिवाइस है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो इससे इनपुट या इससे आउटपुट अपने पास ले सके. दैट्स व्हाई जो डिवाइस मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे डिवाइसेस को रीड आउट करने के लिए और उनकी वर्किंग को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है. एट लास्ट आता है सिस्टम की सिक्योरिटी. ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर बेसिस पे कर्नल की होती है. सिस्टम सिक्योरिटी मींस नॉट बाय द एंटीवायरस. ठीक है. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर एक टूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फायरवॉल. ओके. if you are using the authentic window, it means your window has the keys जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है. तो आपके जो फायरवॉल होता है, जो टूल होता है, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस होने से रुकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में. किसी को भी परमिट नहीं करेगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी और ऐसे यूजर का एंट्रेंस जो कि आपके सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं रिस्की हो. दैट्स व्हाई फायरवॉल आपकी सिस्टम सिक्योरिटी के लिए, जो फायरवॉल टूल बनाया गया है हमेशा सिस्टम सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है. समटाइम्स व्हेन वी यूज द फायरवॉल टूल, कभी कभी हमारा जो वाईफाई है वो भी कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता है. इसका रीजन ये होता है कि जब हम वाईफाई को यूज करते हैं, देयर आर सो मेनी चांसेस कि विदाउट एनी सिक्योरिटी सो मेनी वायरसेस कैन अटैक ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम. ओके. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या मोस्ट ऑफ द यूजर जो होते हैं वो पायरेटेड विंडो का यूज करते हैं. अगर वायरस का अटैक हो भी जाएगा तो सी ड्राइव को छोड़ के बाकी सारी विंडो सेम रहेगी. आप सी ड्राइव फॉर्मेट करके दोबारा से विंडो को यूज कर सकते हैं. अगेन यू विल यूज द पायरेटेड विंडो. बट इफ यू आर यूजिंग द ऑथेंटिक विंडो जिसमें कीज अवेलेबल होती हैं, तो आपका ये फायरवॉल जो है वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से वर्क करता है. ओके. तो दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इतना ही आपके सिलेबस के हिसाब से, और आपको मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ. तो इसमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क कि एट लास्ट हम लोग अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स विच आर अवेलेबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. Like firstly, we are talking about the CUI. I have already told you कि DOS is the example of CUI. And अगर हम लोग GUI पे जाएं तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है विंडोज का. Nowadays Windows 7 and Windows 10 is basically used by the users. Okay. कहीं ना कहीं ऑथेंटिक भी है, बहुत अच्छी काम भी करती है. जो नॉर्मली हमने कहा है बहुत इजी भी है Windows 7 and 10. ओके. उसके अलावा विंडोज की अगर हम लोग बात करें तो मैक ओएस या इसे कहा जाए iOS. एप्पल एक कंपनी है, एप्पल, जो कि आपके फोन और लैपटॉप बनाती है. वो इस तरीके की विंडोज यूज करती है. लाइनक्स, यूनिक्स,
Ubuntu, Fedora. These are the विंडो जो कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूज की जाती है, यानी मैक्सिमम जब हम लोग किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे यूजर, मैंने अभी आपको बताया था ना मल्टी यूजर, तो जब बहुत सारे यूजर एक सिंगल विंडो पे काम करें और वहाँ पे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जब एक जैसे होते हैं, एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, तो हम लोग लाइनक्स और यूनिक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा उबंटू का भी यूज किया जाता है मैक्सिमम। क्लियर है? तो ये सारी विंडोज हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे आजकल आप लोग जिंदा हैं, एंड्रॉइड, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपके मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू मोबाइल के लिए यूज किया जाता है। ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप डेस्कटॉप पे से यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए बनाया गया है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, जो कि नाउअडेज यूज किए जाते हैं बहुत ही फ्लुएंट तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब भी वीडियो बनाऊंगा तो कुछ नया टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा। तो टिल देन यू विल जस्ट वॉच द वीडियोस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्योर योरसेल्फ एंड सी द थिंग्स। और इसके अलावा इफ यू वांट एनीथिंग व्हिच आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू, या कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देन यू कैन से मी ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।